When I gave my PG exam, I got selected in third attempt. And yes, it was a very difficult time for me. It was a really difficult time for me, but a time when I learned a lot. It was a period of enlightenment for me, basically. I have gone through all the phases which all the students they face now. Before choosing any branch, you have to know that how much do you like that branch. क्या आपको वो ब्रांच पसंद है या नहीं है. इंटर्नशिप को बहुत अच्छे से करना चाहिए. यू शुड गिव प्रॉपर टाइम ड्यूरिंग इंटर्नशिप. यू नो पेशेंट्स लाइफ एंड डेथ इज डिपेंडेंट ऑन यू. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस लाइक एक लगता है थोड़ा सा लगता है कि भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर. लेस देन 100 then I would have said कि yes you have to work a lot. But if you are at 140, 145, 148, 149, that means you are actually working a lot and you have to just keep going in that direction. You cannot stop at a point. Hello guys, welcome back in our episode Dr. Artist Podcast. I am Dr. Artist as your host और मेरे साथ है मेरे को होस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शनी और आज के हमारे खास गेस्ट है डॉक्टर शिल्पी मैम. Thanks a lot for inviting me, and this is a great honor for me that you have invited me here as an interview, or you can say as a podcast. And basically it is first time I'm giving such kind of interview. Till now I have given so many interviews, but those were academic interviews in which I had to tell them facial now sir this is this or I have to tell neuroanatomy sir the brain sections are this, or in the brain it is like that, this is the pathway. But now it is a totally different kind of thing which we will be having a good interaction like. So I really wish that your channel grows very well and you do really well Thank in you, future ma'am. also. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Artist, for having me. I'm Dr. Priyadarshini. I'm thrilled and moved to be co-hosting this episode today. First, we would like to welcome Dr. Silpi Agrawal, ma'am, in this episode. Thank you, ma'am, for being here. Thanks a lot. It's my honor actually to be here. And it would actually add one more experience to my life, in fact. मैम आप हमारी ऑडियंस को आपकी जर्नी के बारे में शेयर कीजिए कि आपने कैसे चूज़ किया एज ए एनाटॉमी प्रोफेसर. ओके जर्नी के रिगार्डिंग तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं स्टार्टिंग से ना बड़ी किताबी कीड़ा रही हूँ. जो एक्चुअल में वो दिखाते हैं ना कि भी किताबी कीड़ा है ऑलवेज इन द बुक्स एंड दे डोंट लुक हियर एंड देयर. सो जस्ट लाइक दैट आई वाज दैट. एंड I got MBBS in first attempt, and throughout the MBBS journey I was like totally into books, किताबी कीड़ा. बट अचानक से वो जो किताबी कीड़ा होता है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आती थी अचानक से हम जाग जाते थे. मैं जाग जाती थी, अच्छा मेरी कोई और लाइफ भी है. एंड एवरीबडी लाइक एट माई कॉलेज was very surprised कि how come such a किताबी कीड़ा can also do extracurricular activities. And I was into sports also, but more into other activities like I have been in dance and हाँ मैम मैंने डांस देखा था आपका लास्ट. so in college I was not only into dance but I was actually famous for that. I got fame for that in fact in the college. And I was into painting also. Like these are my hobbies and a lot of extracurricular activities. And during MBBS I have studied a lot. We have enjoyed the lot. Like the time also we have enjoyed. It is not like कि भी हमने सिर्फ पढ़ाई की है. पढ़ते भी थे, बहुत फोकस से पढ़ते थे, बट अपने ग्रुप के साथ टाइम को एंजॉय भी करते थे और सैटरडे संडे अर्स में आउटिंग भी करते थे. That's nice, ma'am. And like after that, everybody in their life they have a ups and downs, right? So like though I was selected in first attempt in MBBS, but when I was giving the PG exam I faced that thing in my life. जैसे कहते हैं ना कि हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी एक वो मोमेंट आता है कि जब वो उस फेलियर को फेस करता है या फिर गॉड उनको दिखाना चाहता है कि हाँ यू हैव टू लर्न सम थिंग्स इन लाइफ. And basically what happens now when the failures are there or when there are some ups and downs, we usually get low. And we feel ki what should I do or why it is happening to me. So same things were happening with me also. When I gave my PG exam, I got selected in third attempt. And yes, it was a very difficult time for me. It was a really difficult time for me, but a time when I learned a lot. It was a period of enlightenment for me basically. I have gone through all the phases which all the students they face ना. Like whenever the student is telling me कि मैम I am feeling very low, I'm not able to study. कई बार students बोलते कि मैडम मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मेरे में दिमाग कम है या मैं ठीक से पढ़ नहीं रहा हूँ या मेरे पास मतलब उतनी कैपेबिलिटी नहीं है. All such kind of feelings I have gone through. And I know, yes. हाँ जो मैम आपका जो डिफिकल्ट टाइम था
I would like to say that we were not so blessed enough to get so many faculties to whom we can interact. Like basically, we had no faculty with whom we can interact so much. And I feel that nowadays the students are blessed with this and they should take this opportunity. And they should get through the things because they are getting so much of advice and they are getting so much, they're getting to learn so much from their experiences. But yes, I used to get a lot of, motivation from my parents and from my family because I am the only doctor in my family and everybody was so excited because I am the only doctor in the family. That is another thing कि nobody wants to become doctor after that because they think Yeah. oh my god so many study इतना पढ़ना पड़ेगा दिन रात पढ़ना पड़ेगा. So like the future generation does not want to study, but being as the only doctor in the family, it has given me so much of respect in my family and they love me so much and they have motivated me throughout this duration. And yes, as well as all my seniors, my immediate seniors and a lot of seniors who have helped me a lot. Like whenever I used to feel low or whenever I used to feel I'm not able to understand what should I do, then I used to ask them and I used to call them and ask them that what should I do. But definitely I would like to say that at that point of time we didn't had any good guidance regarding that what career we should choose or what exam like how to give exam properly. तो उतनी अच्छी गाइडेंस हमें मिल नहीं पाती थी, इसलिए क्या होता था कि हम गिरते थे फिर उसको समझते थे कि अच्छा ये वाली गलती होगी तो अब इसमें ऐसे करना है, फिर गलती करते थे फिर उससे सीखते थे फिर समझते थे. एंड बीइंग द फर्स्ट डॉक्टर इन माय फैमिली, you can understand that I was not getting any guidance regarding this profession because my family is full of engineers and definitely when you can understand when it comes to medical field they are just like पढ़ लो पढ़ाई कर लो, that's it. उनका एक मोटिवेशन रहता था कि ठीक है आप रुको मत, पढ़ाई करते रहो. Continue But पढ़ते there रहो. are so many aspects in during the preparation that you have to face so many things when you're going to give the exam. How to prepare just few days before the exam, what should be your strategy during the 1 year. And just as you are saying कि ना मैम बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं. See, if I have crossed the PG in 3rd attempt, right? So that means FMG exams every 6 months. 6 months, So you हाँ. can say like Same. 4th or 5th attempt. तो मुझे ऐसा लगता है जब भी मेरे से कोई जूनियर आके पूछता है ना तो मुझे लगता है कि अरे ये तो एक ही अटेम्प्ट में इतना घबरा रहे हैं. एंड दैट वाज सम डिफरेंट टाइम, बट नाउ व्हेन आई सी माई सेल्फ एज टुडे, सो आई myself get inspired by me. Yes, I have done it. Whatever I thought that I will do this, I will try to do that. I have I have reached to that certain level. I feel so. Yes, ma'am, you have. So, ma'am, NEET PG is just around the corner. In this short period, what is the ideal revision strategy? See, the ideal revision strategy will be that, of course, first of all, they should be having a schedule. A target should be there in their mind that what they have to do. बिकॉज अगर उनको यही नहीं पता कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में पूरा करना है, सिलेबस कितने टाइम में पूरा करना है, एंड इफ दे आर प्रिपेयरिंग विदाउट एनी टारगेट और विदाउट एनी शेड्यूल, द थिंग विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट दे थिंक. लाइक वट एवर दे आर प्लानिंग, द थिंग्स मे नॉट गो अकॉर्डिंग टू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव अ शेड्यूल. एंड सेकेंडली, whatever like this is of course the time of revision, and just before the exam, 1 week before the exam should be a super quick revision. And whenever they are studying, they make it a point that they have done all the PYQs. They ensure that they have done all the PYQs. They are okay with all the PYTs, previously asked topics. They're okay with those topics. And a very, very important thing is that they should have belief in them. Yeah. No doubts, no self doubts. Self doubts अपने आप चल के आते जी, हैं. हाँ. आप ना भी कोशिश करो, वो अपने आप आपके पास आएंगे. आएंगे, सेल्फ डाउट कि क्या मैं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे इस पेपर को, ये नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है या नहीं है. The doubts will always be there, but the thing is that you have to just ignore the doubts and focus on your schedule. So that is why I say कि make a schedule. क्योंकि आप जब शेड्यूल बनाओगे, जब आप शेड्यूल को पूरा नहीं कर पाओगे, तब आपको कुछ लगेगा कि अरे ये चीज़ रह गई, तो आपका सारा दिमाग उसी में चला जाएगा कि मुझे इसको कंप्लीट करना है. तो आप पहले अपने टारगेट को कंप्लीट करो, एंड देन लाइक यस ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू डू द थिंग्स. फॉर एग्जांपल मैं एनाटॉमी ब्रांच चूज़ करता हूँ एज ए फ्यूचर, तो मेरे पास क्या क्या स्कोप है एज ए एनाटॉमी प्रोफेसर? चलो पहले तो वेलकम. Exactly. Welcome.
So I think I'm going to get a junior in anatomy branch, so that is very nice. And like if you choose anatomy as a branch, see, first of all, before choosing any branch, you have to know that how much do you like that branch. क्या आपको वो ब्रांच पसंद है या नहीं है. और सबसे पहली बात, जब भी आपको किसी ब्रांच के बारे में डिसाइड करना है, जस्ट सी कि ड्यूरिंग योर MBBS टाइम हाउ वेल कनेक्टेड यू वर विद दैट ब्रांच, कितना आप कनेक्टेड फील करते थे उस ब्रांच के साथ, कितना अच्छा आप उसमें कर पाते थे. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड इन टू दिस दैट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आस्क मी मैम इंटर्नशिप कैसे करनी चाहिए. आई ऑलवेज फील कि ना इंटर्नशिप को बहुत अच्छे से करना चाहिए. यू शुड गिव प्रॉपर टाइम ड्यूरिंग इंटर्नशिप, एंड नॉट ओनली दैट कि गए ड्यूटी और करके आ गए. यू आर गेटिंग एम्पल टाइम, गो देयर, talk to the seniors, ask them how do they feel in that branch, and you will get to know ki like there are many doctors who are not satisfied when they reach to that branch. Like for example, they have picked the gynae ops, but they may not be very happy with that branch, and that is, you know, जब आप कहते हो ना रेड फ्लैग, कि तो ये रेड फ्लैग है यहाँ पे कि अगर आप उस ब्रांच के अंदर हैप्पी नहीं हो, आप खुश नहीं हो, so that means it was not for you actually. तो अब क्या है ना, हम अपनी गलती करके सीखें, उससे अच्छे कि दूसरे की गलती से कुछ सीख लें. और सामने जो हमारी फैकल्टी है या फिर हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स है, अगर उन्हीं से हमें एक्सपीरियंस मिल जाए, सो दैट विल मेक आवर लाइफ अ बिट इजियर. एंड सी, यू कैन नॉट डिसाइड अबाउट एनी ऑफ योर ब्रांच ओवरनाइट. कि आप सोचो कि मैं एग्जाम दूंगा, काउंसलिंग से पहले मैं सोच लूंगा कि भाई मुझे ही ब्रांच चाहिए. नो, यू कैन नॉट डिसाइड इट ओवरनाइट. यू हैव टू डिसाइड इट लाइक ड्यूरिंग दिस, इट इज अ प्रोसेस. Like when you are doing MBBS or when you are doing especially the internship, at that time you realize ki what branch do you like and what branch do you don't like. Like as you said, Dr. Artis, ki ma'am, I want to pick anatomy. So anatomy is a very good branch and definitely no stress at all. It's very important. And if you are a person that you are a bit cool and calm type of person and you don't need any stress in your life, और एक वो डर नहीं हो लाइफ में कि भाई रात को फोन बज जाएगा, घर से दौड़ना पड़ेगा, या फिर पेशेंट्स लाइफ एंड डेथ इज डिपेंडेंट ऑन यू. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, लाइक एक थोड़ा सा लगता है कि भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर, एंड प्लस यस ऑफ कोर्स इन दैट क्या होता है, फैमिली और वर्क बैलेंस थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं. बट इन आवर फील्ड देयर आर नो चांसेस ऑफ दैट इम्बैलेंस बिकॉज यू गो एट 9 to 4 जॉब इज देयर. सो ऑफ कोर्स the balance can be maintained, the family and the work life balance can be maintained, plus the so much stress is not there, definitely so much stress is not there. And बहुत ही बढ़िया एक और चीज़ है, जैसे ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं तो सब बिल्कुल ऐसे करके हो जाते हैं कि नॉट मी की मैडम फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, तो सब थोड़ा सा ना आपसे थोड़ा डरे भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. एंड यू आर द वन हु आर एक्चुअली फेसिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. और एक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. और वो स्टूडेंट आपको हर समय जिंदगी भर याद रखते हैं. अभी तक जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, अगर वो मुझे कहीं भी मिल जाए, दे लाइक अडोर मी लाइक एनीथिंग, कि मैम आपने जब पढ़ाया था तो ऐसा था, आपसे जब हम मिले थे तो ऐसा था. मतलब दे नो कि दे रिमेंबर मी टिल टुडे, because we give them support also, we give them direction also, that how to deal in this, you have entered in the college, how to deal with the things, plus we help them in the academic support also. So definitely एक जो student और फैकल्टी का जो एक कनेक्शन है, जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. एंड यू ऑल्सो फील गुड व्हेन द स्टूडेंट्स दे रिस्पेक्ट यू सो मच. तो एक अच्छा फील होता है आपको. एंड इफ यू से कि ओके दिस इज़ फॉर लाइक regarding the branch, and if you say ki ma'am what further you can do in this branch, then also I will tell you, like there's a lot of people who want to do something more, okay, because if you have done MD anatomy or MS anatomy, you want to do something more. So you can go for clinical embryology, you can go for IVF clinics, and I have seen a lot of my seniors who are doing the sonography, ultrasonography courses also. Or if you don't want to go for anything, it is up to you. You are already MBBS, so you can do your general practice also. Like in the morning time, you can do the college in the medical college, or you can do the clinical practice later on, or you can come up with us in the in the coaching for the lectures also. So there are a lot of prospects. It basically depends on you that how much work you want to do. Prospect सब जगह है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ closed है. It is not a closed branch.
it just depends on you how much time you want to give and how much efforts you want to give. मैम आपने कभी स्टूडेंट से कुछ सीखा? आप इतने स्टूडेंट के टच में रहते हो. Bilkul. Every day we go and teach the students. They take a lot of inspiration from us. They take a lot of motivation from us, and they learn so much from us without knowing that they are also inspiring so much to us. And they also teach a lot of things to us. Like, teach how? Because when they ask the question, that makes us realize that we are weak in which topic. And like, this is how I have strengthened my anatomy, by teaching a lot. I've taught a lot of students, and whenever they used to ask me the question, I understood that, okay, this topic I have to study again. And whenever I had a like interactive classes, I made it sure that I have to study more than my student, so that whenever I reach in the class, I can answer their doubts. So in that way, it made me more, academically oriented. As well as, if you talk about inspiration, yes, I used to get a lot of inspiration and motivation from all of my students. In fact, like, whenever I'm teaching all the FMG students, I get a lot of motivation. Whenever I'm teaching them, and if I feel like it has become so hectic, so I always think, if he or she is sitting there and studying so much, and they are studying from morning to evening, and then they have to go back and again they have to study. जी मैम. And they're compromising so much in their life. So why can't I? I will also do it. वो बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वो सुन रहे हैं. And like, तो कभी मुझे ना कभी वो टायर्डनेस फील ही नहीं होती है. Because I know कि भी मुझे ये टॉपिक बार बार पढ़ाना है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाना है, हर बैच में जाके वही चीज़ पढ़ानी है. But when I see the students and when I see their happy faces ना, that gives me so much motivation. जैसे वो स्माइल करते हैं तो मुझे लगता है, yes, क्लास बढ़िया जा रही है. Also, ma'am, for the FMG repeaters who are stuck in 140s and unable to crack the exam, especially those who are feeling very low, what advice would you give to them? The advice which I would like to give is that, first of all, no self-doubt. You have got the potential, that is why you have reached till 140 score. If you had reached less than 100, then I would have said, yes, you have to work a lot. But if you are at 140, 145, 148, 149, that means you are actually working a lot, and you have to just keep going in that direction. You cannot stop at a point. What usually happens now, when we see such kind of thing, जब ऐसा failure होता है, या फिर आपको लगता है कि भाई मेरा score ठीक से आ नहीं पाया, कई बार ऐसा होता है कि आपने पढ़ा बहुत होता है but वो score आता नहीं है. तो that example, I am here who is sitting, same thing happened with me, but the thing was that I was consistent. When I gave the exam for PG Nan, this happened me in the second attempt. Like, the first attempt when I was giving, it was during internship, and you know that during internship everybody is like a bit casual. So I was also a bit casual, and I was also more into internship and less time for studies. But at the second attempt, I studied a lot. And I was like, अब तो मेरा क्रैक होना ही चाहिए, कि अब तो होना ही चाहिए. बिल्कुल सारे मतलब जितने भी होते हैं ना तरीके, सारे तरीके लगा दिए थे. पढ़ाई कर ली, भगवान जी से भी खूब मतलब प्रार्थना ही कर लें कि सर, कि भगवान जी प्लीज प्लीज प्लीज. बट आई कुड नॉट क्रैक, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार, व्हाई मी? There are so many other students, my colleagues, who were not studying that much, but they were able to, get some rank. But I was not able to get rank. I was like, why me? Why it has happened to me? कि इतना पढ़ा मैंने तब भी नहीं हुआ. But then I came just above it. I thought कि ठीक है, नहीं हुआ. But मुझे एक चीज़ पता थी कि I deserved to get MD. Like, I always felt कि मैं deserve करती हूँ इस चीज़ के लिए. So why not work for it? करना तो है मुझे. रुक तो नहीं सकती मैं. That's why, ma'am, you're here. Very successful. मैम, फॉर एग्जांपल, हमें पीजी सीट चूज़ करते समय ये हमें ब्रांच पे फोकस रखना चाहिए या हमारा ड्रीम कॉलेज पे रखना चाहिए? Definitely, this is a very good question, because a lot of students are confused. कंफ्यूज रहते हैं मैम इसमें भी. Yes. And what I feel is that choosing a correct branch is a very, very important point, because as I told you earlier, that sometimes what happens, like a lot of times it happens that you choose a branch under pressure. A lot of peer pressure is there, friends pressure is there कि अरे ये branch अच्छी है, तुम्हारी रैंक अच्छी है, तुम्हें ये branch लेनी चाहिए और उस कॉलेज से लेनी चाहिए. तो rather than listening to everybody, first of all listen to yourself. And first of all, you should be aware that what branches do you like. Like, for example, if you ask me, during the internship, I was very much clear that I cannot do surgery branches.
And even if anybody will give me, okay, take this branch, I will not take it. Like I will tell you कि बड़ी मतलब थोड़ा सा मेरे लिए वो एक ऐसा पॉइंट था लाइफ का कि बहुत ज़्यादा मुझे क्रिटिसिज्म मिला था अपने फ्रेंड से. आई गेव DNB एग्जाम. लाइक एट माई टाइम DNB एग्जाम वॉज अ सेपरेट एग्जाम, and I gave DNB exam. And at our time, what used to happen, you had to give the DNB exam, and then you had to give some interviews. Like in all the hospitals, you have to go and give the interviews. So I somehow cracked DNB surgery in Hindura College, Hindura hospital. In that medical college was there, and I was actually looking for medicine. और जैसी काउंसलिंग हो रही थी तो मेरे से जो पहले वाले पर्सन था, ही पिक्ड अप मेडिसिन. आई रिक्वेस्टेड हिम कि प्लीज़ आप तो मेल हैं, आप सर्जरी कर सकते हैं, आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन सर्जरी, प्लीज़. बट यू नो the things go on according to, like कहते हैं ना, लाइफ वैसी ही चलती है जैसे चलनी है, and the things are not, sometimes not in your control. So I ended up getting the DNB surgery. I left it and I came back to home. Yeah, at my home also, for one day, like they were like कि अरे पिक कर लेती, इतनी कोशिश कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, आपको एक ब्रांच मिल रही थी. But they understood कि she does not like that branch. And my friends also said, जब मिल रही थी ब्रांच तो आपने पिक नहीं की. अब आप कहोगे कि भाई मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मेरे को जो मैं चाह रही हूँ वो चीज़ें मिल नहीं रही. Then I told them कि actually I don't like this branch, and you know me ना कि मैं कैसी हूँ. Like I'm a very cool, calm type person from beginning. ऐसी हूँ, cool, calm type की, मतलब कोई चिक चिक नहीं, और वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे सिर पे कोई खड़ा है, अच्छा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. I cannot handle that thing. आई एम लाइक ओके ओके कूल कूल. ना मैं किसी को डांट सकती हूँ, ना मैं किसी की डांट सुन सकती हूँ. अगर मुझसे कोई कह दे अच्छा जाओ उसको डांट लगा के आओ, आई एम लाइक अच्छा कैसे डांटते हैं. आई एम ओके, मैं जाऊंगी उसको कहूँगी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. तो लाइक माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से ये डांटना हुआ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. So like I understood कि this is not a branch for me. I will take a MD branch, and like if I get medicine, pediatrics, I will take that, or I will go into non-clinical. So first of all, you should be decided in your mind that what branch you like. You want to go for MS, you want to go for MD, or you want to go for a non-clinical field, whichever field you like, and then you decide the college, because the field is more important. That field will remain with you throughout your life. The college will remain with you for 3 years. 3 years. 3 years only, means yeah. 3 years you can adjust. I feel you can adjust for 3 years. But yes, while choosing a college, you have to make a correct decision. आपको थोड़ा सा proper college choose करना है. You have to work on it. And as I told you, you cannot work on it overnight. And you have to, like, first of all, like, daily you should be having in your mind कि भी which branch is my like favorite branch, or I can go for this branch. Having a backup in your mind. अगर आपको favorite लगता है कि pediatrics है, yeah, if you think that your favorite is surgery, but you should have a backup in your mind, because the life and the counseling and you know the rank in the NEET PG exam, it is very unpredictable. You cannot judge, because that day of the exam is so unpredictable. What happens on that day? So you should have a backup in your mind कि अच्छा ये branch नहीं तो ये वाली branch, ये branch नहीं तो ये वाली branch. And you should be working on the colleges also कि जिस भी branch के बारे में मैं सोच रही हूँ तो वो branch कौन कौन से colleges में अच्छी है. तो अगर आप आज भी गूगल पे सर्च करोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी. So you should be knowing these things in your mind, and first of all go for branch and then go for the college. Yeah, definitely. Ma'am, who is your biggest inspiration? For me, the biggest inspiration are my parents. They are my biggest inspiration, who have been with me at every moment of time, who have made me capable so that I'm sitting here in front of you. And that is only due to their inspiration and motivation. At the times when I was like used to feel very low and I was falling apart, they were the one who made me realize that you have the immense potential and you have the capability to do a lot of things. And I really thank them that they have made me so much independent. And they have gave me that thing in my mind कि yes, you have to do something in your life. ऐसा नहीं कि MBBS कर ली तो वहीं रुक गए, ऐसा नहीं. MBBS के बाद भी आगे कुछ करो. और career, like they made me career oriented, that yes, you have to think about your career, because as a female you should be having a good career. And a bit of self independence is also a must. मैम That कितना should be there. मैम कितना मैटर करता है आज के टाइम फीमेल इंडिपेंडेंट होना? What I feel is that when you say na ki ma'am, like a lot of times I hear at a lot of places that this person should respect me, they should respect me. The respect is actually earned. You cannot ask anybody to respect you
कि मुझे रिस्पेक्ट करो, ऐसा आप नहीं कह हाँ जी। सकते. रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड. हाँ, Like as you have earned after clearing your exam, you are doctors, now you are MBBS. Wherever you go, the people look you as a doctor, and they respect you automatically. You don't have to ask them. And similar thing is like, I always recommend that not only for females, the males also, they should go for post graduation also. Because nowadays ना, अगर हम कहें कि सिर्फ MBBS हुआ, तो लोग आपको उसी तरह से देखते हैं, और उसी में अगर आपने एक MD और MS ब्रांच ऐड कर दी, तो उनका नज़रिया चेंज हो जाता है मैम, बिल्कुल. उसमें आपको उनसे कुछ कहना नहीं पड़ता, या कुछ बोलना नहीं पड़ता था कि भी अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देनी पड़ेगी आपको कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. बाय सीइंग योर डिग्री दे विल कम टू नो दैट यू आर कैपेबल इनफ एंड यू आर intelligent, and that is why you are able to do this, and the respect automatically is there. So the respect is very, very important thing, and I feel that all the females should try to give the exam like NEET PG, and they should go for MD also, because I have usually seen मेल्स में तो एक चीज़ होती है कि वो करना चाहते हैं, बट फीमेल्स एक पॉइंट पे आके रुक जाती है कि नहीं, बस MBBS हो गया, दैट इज एनफ. But I feel like most of the families are supporting, and it is us who usually stop. या तो कई बार ऐसा लगता है कि चलो बस बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत मेहनत कर ली, बस हो गया. कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार हम थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं, या कई बार एक बार अटेम्प्ट दिया और हमें लगा कि नहीं, अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया, तो हम वहीं रुक जाते हैं. इट्स ओके, बट वाई टू स्टॉप? लाइफ इज सो बिग यार, लाइफ इज सो बिग. Why don't you try? हो सकता है ट्राई करते करते हो ही जाए selection. तो ट्राई करना तो नहीं रुकना चाहिए, ट्राई करते रहो. इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल, एंड प्लस यू नो लक इज ऑल्सो देयर. कई बार होता है कि वो टाइम आपको फेवर नहीं कर रहा, बट बाद में टाइम आपको फेवर करता है. वही सेम चीज़ आप बाद में करते हो और टाइम फेवर कर जाता है. So I feel that you should never stop, but yes, definitely at a point we have to keep a balance between your work and life also. So, ma'am, for the FMG graduates, the fresh ones, what advice would you give them in terms of preparation? Right. In the term of preparations, what I feel is that, like, first of all, those who are repeating this exam, they should be, what I feel is that, like, the exam is on 26th, right? So by now, they must have done one read. One time, they must have read everything. And if they have not read any subject once, that means they should do it quickly, within this 1 week. And they now should go for the first revision. This is the time to go for the first revision. And at least you should have 45 days, because first revision maybe you need time, na? So 45 days we should have for first revision, and first revision means for all the subjects, not the selective subjects. You have to go for all the subjects. And if you do 45 days for first revision, then you can say after that 20 to 25 days for second revision, so that in the last 7 to 10 days you have time for quick revision. So they should start doing the first revision now only. But how about the fresh pass out? Okay, if you like for the fresh pass outs, like, because they are studying it first time. Yeah, they are studying for first time, so of course they feel a difficulty, because they are doing the classes in the morning, then evening they come back and then they study. Of course, this is a difficult phase, a difficult thing to follow. So I would recommend them that now, whenever the syllabus is completed, like if they have joined any classes, the syllabus will be completed almost. Ma'am, for the fresh pass out students, how should they prepare so that they can clear in the first attempt? Okay, so for the fresh pass outs, like those students who will be just passing out and they will be doing the studies, what I recommend is that whenever their exams are completed, their final exams are completed, okay, you can just spend few days, you know, enjoying कि हाँ चलो भाई क्लास अब एग्जाम खत्म हो गया, वो दिमाग में जो एक बोझ था, एक स्ट्रेस था, वो खत्म हो गया. But after few days ना, you should start the preparation. The sooner you start, the better for you. And as you know that you have this, that you can join online classes also, and you can join online, and once you return back to India, you can join the offline class. So you should take that opportunity and start doing the classes from there only. So that is a thing which I feel, because I have seen a lot of students who join very late, who decide very late. So don't take time in decision. You have to study ना, तो study तो करना ही, पढ़ना तो है ही. तो अब उसको तुम एक महीने बाद पढ़ोगे, एक महीने पहले भी पढ़ना शुरू कर दो. So that will add up into your knowledge, and that will add up into that hours of study. Because even if you study 3 to 4 hours a day, if I say 3 to 4 hours a day classes there,
and you study after that 2 to 3 hours, that is more than enough in the beginning. But definitely it requires a start. एक starting point तो होना चाहिए. एक मैम एक अच्छी ब्रांच उठाने के लिए मैम प्रॉपर शेड्यूल कितने मंथ तक हमें फॉलो करना चाहिए? Okay, so like for the NEET PG, when you have to go for a good branch, if you are like feeling कि मुझे बहुत अच्छी branch एक पे करनी चाहिए, इसका मतलब मेरी rank बहुत अच्छी आनी चाहिए. So the thing is that while doing the internship, you should start preparing. And even if you give 3 to 4 hours a day, that is more than enough during your internship. And I always recommend that when you are doing the internship, go and learn there, because nobody is going to teach you so much after the internship. इंटर्नशिप में क्या होता है कि फैकल्टीज और जो डॉक्टर्स होते हैं आपको पकड़ पकड़ के सिखाते हैं कि अच्छा ये सीखो वो सीखो. बट जब आप इंटर्नशिप करके चले जाओगे तब आपसे कोई ये नहीं कहने वाला है कि हम सिखाएंगे. वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या आता है, कितना आता है. एंड स्पेशली लाइक वी लाइक ऑल द एफएमसी स्टूडेंट्स हु हैव बीन अब्रॉड, दे हैव सीन ऑल द डिजीजेस ऑफ अब्रॉड एरिया एंड एज वेल एज द पेशेंट स्टाइल ओवर देयर. बट जैसे आप इंडिया में आते हैं यहाँ पे पेशेंट स्टाइल टोटल चेंज हो जाता है. एग्जैक्टली. तो पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अ डॉक्टर शुड लर्न. नॉट ओनली द एकेडमिक नॉलेज, वो ज़माने गए कि सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ लिया और ब्रांच उठा लिया और वैसे कर लिया. योर कम्युनिकेशन should be good. You should be knowing how to communicate. Your communication power should be good, and that you can learn only when you are doing internship, when you are seeing your senior doing that communication. तो जब आप अपने senior faculties को देखते हो, जब आप OPDs में बैठते हो, जब आप उनको काउंसिल करते हुए देखते हो पेशेंट को, तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है. और इंटर्नशिप के टाइम पे पेशेंट्स आपको आके कई की चीज़ें बोलते हैं, अरे सर ये ऐसे है, सर वैसे है. तो आपको समझ में आता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, एग्रेसिव पेशेंट्स को कैसे हैंडल करना है. और जो मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको होता है कि नहीं सर, अब पहले आप हम ही देखिए, फिर बाकी पेशेंट्स को देखिएगा. सो दैट थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड. सो आई फील दैट यू शुड फोकस ऑन योर इंटर्नशिप इन द मॉर्निंग टाइम, and after that when you come back, okay, relax for a while, 1 hour you give to yourself, and then you can do the studies. And at that time na you will feel you will enjoy studying, क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा. सिर पे कोई तलवार नहीं है कि नहीं अभी पढ़ना ही पढ़ना है. तो उसमें पढ़ने में बल्कि आपको अच्छा लगेगा. एंड व्हाट आई फील इज दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी इंटर्नशिप ना, जो सब्जेक्ट की इंटर्नशिप कर रहे हो आके वो सब्जेक्ट पढ़ो, तो और आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा. वही केस जो आपने देखा मॉर्निंग में, जो भी केसेस देखे, वही केसेस आके आपने एक बार थोड़ा सा एकदम जस्ट गो थ्रू कर लिया कि अच्छा मैंने क्या इसके बारे में पहले पढ़ा था, इसमें और क्या नया है. एंड दैट विल एड अप टू योर नॉलेज एंड दैट विल रिमेन इन योर ब्रेन, इट विल रिमेन इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और हो सकता है कि वो टॉपिक आप बाद में ना पढ़ो. हो सकता है जब आप पीजी में पढ़ रहे हो तब आप जब भी आप पढ़ोगे हो सकता है उसको ठीक से रिवाइज ना कर पाओ. बट व्हेनेवर यू विल सिट फॉर एन एग्जाम ना, एंड इफ यू सी दैट क्वेश्चन क्विकली, दैट थिंग विल कम इन योर माइंड कि अच्छा मैंने उस दिन ऐसा पढ़ा था, उस दिन मॉर्निंग में केस देखा था, आके जब मैंने पढ़ा तो आपको ट्रीटमेंट भी याद रहेगा, आपको डायग्नोसिस भी कैसे बनाना है ये भी याद रहेगा, और आपको इन्वेस्टिगेशंस भी याद रहेंगे. सो दिस इज हाउ यू यूटिलाइज दैट टाइम पीरियड. एंड डेफिनेटली अगर आप 3 to 4 आवर्स भी अगर आप डेली पढ़ रहे हो ड्यूरिंग इंटर्नशिप, दैट विल एड अप टू योर नॉलेज. और यूजुअली क्या होता है ना कि हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं कि अच्छा कर लेंगे, हो जाएगी, हम वैसे भी एग्जाम तो दे नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, अभी तो 1 ईयर लगेगा. और जैसे अब 2 ईयर्स की भी इंटर्नशिप हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, तो उनके दिमाग में आ जाता है कि 2 ईयर्स लगेंगे. सो दे समवॉट दे हैव इन देयर माइंड कि भी कर लेंगे, देख लेंगे बाद में. बट ये डॉक्टर वाला जो लेबल है वो तो नहीं जाने वाला ना, वो तो आपके साथ ही रहने वाला है. प्रैक्टिस आप करोगे. अगर रोज आपने 2 घंटे भी पढ़ के कुछ सीख लिया, दैट विल एड अप इन योर नॉलेज. ठीक है, इट विल नेवर गो इन वेन. और जब आप एग्जाम दोगे तब तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी. And ma'am, many students are ignoring to give grant tests out of fear or whatever reason it might be. What would you advise them? हाँ मैम, मोस्टली स्टूडेंट होते हैं कि उनको डर रहता है कि मेरा जीटी में स्कोर कम हो जाएगा, तो उनको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो इस वजह से वो जीटी नहीं देते. एक्चुअली दिस इज़ अ फैक्ट. जब आप जीटी देते हो, पहली बात तो 19 सब्जेक्ट्स का जीटी देना है एक साल, तो एक फेयर वहाँ आ गया कि 19 सब्जेक्ट्स का एक साथ देना है. मेरे तो 19 सब्जेक्ट्स तैयार ही नहीं अभी, कैसे दूँ जीटी. सेकंड जो फियर आता है वो आता है स्कोर ना कम हो जाए. और स्कोर कम हो गया तो अरे मैं तो स्कोर ही बहुत कम हो गया, इसका मतलब मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या होगा आगे एग्जाम में. नो. Whenever you are giving GT, first of all you have to give a GT. Why? Because if you don't face that situation, then you are going to face that situation first time when you will give the exam. तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आपको अपनी गलतियाँ समझ में आए,
You basically what should be the role of GT, like in your mind whenever you are giving the GT, the role in your mind should be that I'm trying to assess that if I'm able to give this exam continuously, like you have to sit and give that exam continuously in that duration only. Secondly, you have to assess that am I doing the silly mistakes. Even if you have done 10 subjects, give the exam, at least assess your 10 subjects, am I making silly mistakes or not, and the subjects in which I have not studied, am I able to attempt it or not, है ना, तुक्के सही लग रहे नहीं लग रहे ये भी देखना पड़ता है, am I able to exclude the options or not. So basically you have to assess yourself rather than looking at the score. You have to assess yourself, and after giving the test you have to see that where you are going wrong. You should know those topics, or agar if you have read that topic earlier and even if it is going wrong, that means you have to make that topic, you have to strengthen that topic. So basically you have to realize that what topics I have to strengthen, what subjects are weaker. So that is the role of GT. And rather than looking at the score, first of all try to assess this thing ki am I able to do all these things or not. And I feel that 4 to 5 GTs easily any student can give, and this is the right time to give. If you would have asked this question 1 month or 2 months back, I would have said ki rather than going for GT, go for subject based test, because if you have not studied, how can you attempt all the Exactly. GT. But till now I feel ki 10-12 subjects everybody has studied, Has studied, yeah. and they can go for it. मतलब मैम जो जितनी गलतियां करनी है यहाँ कर लो, जीटी में करनी है, हाँ। एग्जाम टाइम में It कोई should गलती नहीं then होनी be in चाहिए. the exam. Exactly. जितनी जो मिस्टेक्स हैं, जो गलती करनी है यहाँ पे यहाँ हो पे। सकती है, उसको आप सुधार सकते हैं. उस दिन आपको सुधारने का वो मौका मौका नहीं मिलेगा. मिलेगा. एंड यू नो लाइक आई ऑल्सो टेल कि जो जैसे लाइक मेरा भी अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था, तो आई व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि आई स्टडीड अ लॉट बट आई वाज मेकिंग सम मिस्टेक्स. What the mistakes I used to make was, first of all I used to go back and change the answers. That was the biggest mistake I used to do. मुझे लगता था, डाउट होता था बहुत ज़्यादा कि अरे मैंने वो जो मार्क किया ना, कहीं इसका नहीं, कहीं दूसरा आंसर होगा, और मैं जाके चेंज करती थी. फर्स्ट वेरी बिग मिस्टेक आई यूज टू डू दिस, चेंजिंग द आंसर्स. सेकेंड आई यूज टू डू अ बिग मिस्टेक इज दैट माई PYQs वर गोइंग रॉन्ग. जो क्वेश्चन मेरा प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में गलत है, वही मेरा प्रिपरेशन के एंड में भी गलत है. So that means I'm not focusing on that points very well. I'm not making it sure that the PYQs which have been asked earlier, that should be your strong point. It cannot go wrong. So that is why na, like a lot of faculty say कि भी PYQ करना. Why PYQ have to do? Because you already have a question bank in front of you. And if that question goes wrong, that means that you are doing a big mistake. Because everybody knows कि some percentage of questions are always repeated or the topics are repeated. So that mistake I was doing, like in medicine surgery, I used to do this mistake. The question which PYQ question used to go wrong, and in my PYTs were not that accurate. Accurate in the sense कि like I feel that a lot of students must be facing this same problem. That is why I'm telling my like what mistakes I made. And like in PYTs also na, a lot of topics I had an idea कि yeah, this is a very important topic, but when some other question was asked from it, I was not able to answer accurately. I used to stuck between two options. That means that my knowledge was not up to mark for that topic. So I realized those topics and I worked on that. So I feel that all the students who are giving the exam, they should look on these points, because definitely if you look on it na, it will change your score, it will increase your score definitely. मैम एक प्रॉपर स्टूडेंट अपना डेली का रूटीन फॉलो करते हैं, उसके बावजूद ही उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एग्ज़ाम का फियर ऑफ एग्ज़ाम रहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसे माइंड में बार बार उसके थॉट्स आते हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट को कुछ एडवाइस? Basically you should first of all think about your parents also, who have you know worked so much to bring you to this stage. तो जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए, जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, तो अपने फैमिली के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, जो बहुत आस लगा के बैठे हैं आपसे. उन्होंने इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पहले आपको बाहर भेजा, इतने सालों आपसे दूर रहे, एंड अगेन लाइक दे आर जस्ट सिटिंग कि भी हाँ हमारा बेटा हमारी बेटी डॉक्टर बन के आएगी अभी. तो जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, तो हर समय याद रखो कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, और सेकेंड चीज़ अपने लिए भी करना है. क्यों करना है? क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ. तो पहला थॉट, कभी भी नेगेटिव थॉट आए, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते दिमाग में, टेल योरसेल्फ आई डिज़र्व दिस टाइटल. यू हैव टू टेल दिस. यू नो व्हेन यू से ना
मैनिफेस्टेशन कि आप मैनिफेस्ट करते हो कोई चीज़ को, या फिर जो भी आप बातें कह रहे हो, अगर आप नेगेटिव थॉट जब भी हम कहते हैं ना, वो हमारे सोल को अफेक्ट करते हैं। और इसको आप तोड़ोगे कैसे? एक पॉजिटिव थॉट से, और वो पॉजिटिव थॉट आपको बार बार बोलना है, आई डिजर्व दिस। वो सिर्फ फैमिली से आती है। फैमिली से, प्लस आपको ये याद रखना है कि भी ये टाइटल ऐसा जो मैं डिजर्व करता हूँ, मैं किसी से कम नहीं। आपको पता है आप किसी से कम नहीं हो, बस ये है कि भी आप बाहर MBBS करके आए तो आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम देना पड़ रहा है, बट क्या किसी से कम हो? नहीं ना। तो फिर बस यही चीज़ याद रखनी है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। आई विल प्रूव माई सेल्फ, अपनी फैमिली को भी प्राउड करूँगा और अपने लिए भी प्राउड करूँगा कि अपना भी सिर ऊँचा रखना है। तो दिस इज़ अ थिंग विच शुड कम इन योर माइंड। कभी भी आपको लो फील लगे तो यही चीज़ आपको बार बार सोचनी है। एंड डेफिनेटली जो थॉट्स होते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स, वो आते रहते हैं। तो स्पेशली ड्यूरिंग द एंड डेज ऑफ प्रिपरेशन, लाइक जो 20 डेज लास्ट के होते हैं ना प्रिपरेशन के, उस समय तो जो भी नेगेटिव टॉक्स है कहीं से भी, सारी चीज़ें इग्नोर कर दो। सब कुछ इग्नोर करते हुए चलो। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा कोई डिस्कशन कर रहे हैं आपस में कि अरे मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, इग्नोर दैट थिंग। आप अपने शेड्यूल पे फोकस रखो। जैसे हम कहते हैं ना कि घोड़ा दौड़ता है तो उसके बिल्कुल यहाँ पे लगा देते हैं कि अपनी चीज़ पे फोकस रखो, जहाँ दौड़ना है उसी पे फोकस रखो, रेस पे फॉकस रखो। तो यहाँ पे भी हमें एक हमारी दौड़ है जिसमें हमें फोकस रखना है, इधर उधर नहीं सोचना है। और लास्ट के 15-20 डेज में तो कोई भी नेगेटिव टॉक कहीं चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ बोल रहे हैं कि अरे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, नो न्यू टॉपिक्स, नो न्यू सोर्सेज इन द लास्ट 20 डेज। लास्ट 20 डेज में यू हैव सो मच टू स्टडी। आपके पास इतना किताबें पढ़ी हैं पढ़ने के लिए, उससे रिवाइज करो। उस समय ना कोई न्यू टॉपिक्स, ना कोई न्यू सोर्सेस, यू हैव टू जस्ट रिवाइज अगेन एंड अगेन। एंड द थिंग इज दैट ऑलवेज रिमेंबर, लाइक वन मोर थिंग इज देयर व्हाट आई हैव सीन ना, लाइक मेनी स्टूडेंट्स ये कि मैम पेपर 1 अच्छा नहीं हुआ तो उसकी वजह से पेपर 2 खराब हो गया। अरे मैं कहती हूँ कि आपके नंबर कितने आने हैं, आपके क्वेश्चन 300 है, आपको नंबर 150 से ऊपर लेके आने हैं। अभी तो आपने आधी जंग लड़ी है, आधी जंग में रुक गए तो आने वाली जंग का तो आपको पता ही नहीं है। हो सकता है उसमें इजी क्वेश्चन आ जाए, और हो सकता है जो लास्ट 10 क्वेश्चंस हो वही आपको पास कराने वाले क्वेश्चन हो। तो ये जो आपकी लड़ाई है ये एंड तक है, आपको बीच में रुकना नहीं है। हो सकता है बीच में कोई आ जाए खूब अच्छे से बढ़िया सा टफ क्वेश्चन आ जाए सामने, कि अरे उसको देख के मिलेगी ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा। नहीं, टफ क्वेश्चंस आएंगे, दे मे कम, द टफ क्वेश्चंस मे कम, बट वी हैव टू क्रिएट अ होप कि ठीक है मुझे लास्ट क्वेश्चन तक करना है, मुझे वो लास्ट 10 क्वेश्चंस है ना वो जिताएंगे। ये सोच के तैयारी करनी है, आपकी लड़ाई एंड पॉइंट तक है। एंड वेन एवर यू गेट टाइम इन बिटवीन ना, वो जो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के बीच में जो टाइम मिलता है, नो डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ नहीं सोचना है कि कैसा हुआ पेपर, कैसा नहीं हुआ। एंड डोंट फॉलो द क्राउड। यूजली क्या होता है ना कि हम देखते हैं सब लोगों का, अरे ये पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सर्जरी पढ़ रहा है, वो ऐसे पढ़ रहा है। आधी टेंशन ऐसी हो जाती है, देखिए ओह क्या करूँ मैं। जैसा आपको सही लगे वैसा करो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द एग्जाम ना, थोड़ा सा 15-20 मिनट्स के लिए रिलैक्स होकर बैठो। उसके बाद सोचो कि ठीक है अब मैं क्या पढ़ना है मुझे, ठीक है मैं कुछ इमेजेस देख लेता हूँ, कुछ PYQs देख लेता हूँ, जो मैंने अपने 1 लाइनर्स बनाए थे वो देख लेता हूँ। सो बी योरसेल्फ एट दैट टाइम। एग्ज़ाम आपने देना है, दूसरे ने नहीं देना है, आपका एग्ज़ाम आपको ही देना है। सो वट एवर यू लर्न यू विल गो एंड डू द एग्ज़ाम अकॉर्डिंगली। और सबसे मेन चीज़ है काम माइंड इज़ अ मस्ट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अगर आपने पहले अपने दिमाग में टेंशन क्रिएट कर ली तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ जाके दिमाग काम करना बंद कर देता है। एंड आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि मैम फर्स्ट पेपर तो सही से हो गया, सेकंड पेपर में ना मेंटल ब्लॉक हो गया थोड़ा सा, या फिर हम थक गए। तो थक क्यों गए? क्योंकि आपने दिमाग में इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दिया। एग्जाम डे में तो जितना आपने पढ़ लिया था आप पढ़ चुके हो, एग्जाम डे के दिन कुछ आप अलग नहीं कर दोगे। जो आपने पढ़ा है वही सेम जाके आपने आंसर करना है। तो बेसिकली द थिंग इज दैट एट दैट टाइम ना यू हैव टू कीप कूल एंड काम, एंड योर माइंड शुड बी काम। मेंटल ब्लॉक नहीं होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत माइंड देखो फिजिकल एक्सर्शन तो नहीं है बट सारा मेंटल एक्सर्शन है। मेंटल एक्सर्शन ओवर नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज वाई द रोल ऑफ द GTs इज ऑल्सो देयर ना। जब हम GT देते हैं तो ये जो मेंटल एक्सर्शन वाला जो रोल है ये कहीं ना कहीं आप इससे मतलब थोड़ा मतलब समझ जाते हो कि कैसे इसको डील करना है। एंड बेसिकली आई वुड लाइक टू से कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
मैम आप अपने जैसे इतने बिजी शेड्यूल में से अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करते हो टाइम को? See, work and family balance फैमिली is बैलेंस। must. और कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हर समय फैमिली को टाइम दो, क्योंकि वहाँ वर्क सफ़र करेगा। जब आप वर्क नहीं करोगे तो घर वाले भी कहेंगे कि घर में क्यों बैठे हो, सही। और वर्क पे ज़्यादा होगे तो फैमिली वाले कहेंगे कहाँ हो, कहाँ किधर हो? हो, कैसे, कहाँ। तो देयर शुड बी अ बैलेंस। कोई भी चीज़ एक्सेस में अच्छी नहीं होती। हाँ। सो व्हाट आई डू इज दैट जब मैं वर्क पे होती हूँ, आई फोकस ऑन माई वर्क, एंड व्हेन आई रिटर्न टू माई होम, आई फोकस ऑन माई फैमिली। तब मेरे मोबाइल साइड में रखे होते हैं। आई नेवर सी एंड चेक द मोबाइल्स। वो मोबाइल साइड में रहते हैं, कई बार कॉल मिस भी हो जाती है, बट आई मेक इट श्योर कि आई कॉल ऑल द पीपल आफ्टर सम टाइम। बट जब मैं फैमिली के साथ हूँ, आई हैव टू गिव क्वालिटी टाइम। बेसिकली द थिंग इज दैट यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम टू योर फैमिली। एंड यू नो, आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स when this COVID came. I realized a lot of things, because at that time we realized the fear of losing the near and dear ones. And I had seen so many things, and मेरी family में ऐसा हो रहा था कि भी मेरे cousin है, he was like, we had that fear of losing him. And at that point of time I realized कि we always keep focusing, like I used to always keep focusing on work a lot. मेरा जो work और जो family proportion था, उसमें work proportion ज़्यादा था. I realized कि I'm not giving proper time to my family, and I'm not giving the quality time. Quality time का मतलब क्या है? अगर आपने उनके साथ बैठ के लूडो नहीं खेली तो क्या टाइम तो क्वालिटी टाइम, उनके साथ वॉक करो, वॉक पे जाओ, बैठो, चलो चलो मूवी देखते हैं, साथ में मूवी देखते हैं, गॉसिप करो। सो दैट इज अ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम इट इज नॉट लाइक कि भी आपने फोन किया, हाँ सब ठीक है, कहेंगे हाँ सब ठीक है, ओके, नहीं, यहाँ पे खत्म नहीं होती कहानी। आपको उनके साथ बैठना है, बातें करनी है, थोड़ा एक अच्छा टाइम स्पेंड करना है, ताकि आपको भी वो टाइम बाद में याद रहे और उनको भी वो टाइम याद रहे कि हाँ हमने बड़ा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। मैम अभी हमारा आपके साथ जस्ट लाइक रैपिड फायर है। तो अभी मैम आईपीएल चल रहा है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मैं तो मैच ही नहीं देखती। I'm also not a cricket fan. I have no idea. मैम हॉलीवुड में आपका फेवरेट एक्टर? अच्छा, फेवरेट एक्टर, लाइक फेवरेट एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, सारे एक्टर्स जो भी अच्छी एक्टिंग करते हैं पसंद आ जाते हैं, बट अमिताभ बच्चन जी इज़ माई फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। एंड रिसेंटली अगर हम कहें कि एट प्रेजेंट तो अक्षय कुमार इज़ फेवरेट, एंड सारे फेवरेट हैं इनफैक्ट। वैसे सारे फेवरेट आपके। मैम आपका फेवरेट फूड? Favorite food? That is a very difficult question to answer, because I'm a foodie. Wherever I go, I like explore that area. मतलब कहने का मतलब ये, जहाँ जाती हूँ वहाँ की हो जाती हूँ। साउथ में जाती हूँ तो सिर्फ साउथ इंडियन खाती हूँ, और अगर राजस्थान गई तो सिर्फ राजस्थानी खाना खाती हूँ। बट लाइक आई लाइक ऑल टाइप ऑफ क्विजीन्स एंड ऑल टाइप ऑफ फूड। और फेवरेट ऐसा नहीं कि मेरा पनीर है, ठीक है, आई एम ए वेजिटेरियन, बट मेरा फेवरेट पनीर नहीं है। एंड इफ़ यू से कि राजस्थानी फूड में, तो राजस्थानी फूड में मेरा जो गट्टे की सब्जी है, दैट इज माय फेवरेट, एंड सेव टमाटर की सब्जी, दैट इज माय फेवरेट। और अगर मैं साउथ में जब भी जाती हूँ, लाइक आई एम मैड फॉर डोसा, एंड आई हैव टेस्टेड ऑल टाइप्स ऑफ डिशेज है जो भी वेजिटेरियन है, अप्पम, एंड दे मस्ट बी नोइंग, जितने भी हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स हैं, सो दे मस्ट बी नोइंग दिस अप्पम एंड विद वेजिटेबल स्ट्यू, दिस इज रियली माई फेवरेट आउट देयर। सो अ लॉट ऑफ डिशेज, difficult to tell. Gujarat में dabeli, that is my favorite. Nice. And chokabati also. Ma'am, have you ever cheated on a taste? Oh my god. To be frank enough, I tried once, and I was like कि मैं अपनी जो भी मेरे फ्रेंड जो साथ में था, I told that person कि अगर कुछ क्वेश्चन अलग आ गया ना तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, और वो जो फर्दर ना मेरी तरफ भी पास कर देना, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो थे, लाइक गर्ल्स वैसे यूजुअली बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बट उनको क्या होता है ना, दे हैड दैट फियर कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो कहीं ना कहीं वो रहता है फियर। और एक दो क्वेश्चंस अलग हो गए, तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा पर्ची इधर, थोड़ा सा इधर खा, उसने पर्ची मेरी तरफ फेंकी, और उसके बाद मेरे जो हाथ ऐसे कांपने लगे, एंड आई वाज लाइक साइड में, मैंने अल्टीमेटली वो पर्ची साइड में। दैट वाज माय फर्स्ट ट्राई, एंड आई अंडरस्टूड दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट। फिर वन मोर टाइम आई ट्राइड, और वो मेरा फाइनल ट्राई था एक्चुअल में, वो था मेरा वाइवा के लिए, प्रैक्टिकल वाइवा के लिए। तो इन ना प्रैक्टिकल वाइवा यूजुअली व्हाट दे यूज्ड टू हैव ना, कि हमारे यहाँ ना क्या होता था, बुक्स की ना माइक्रो करा लेते थे, वो कोई भी बुक है उसका एकदम छोटा फॉर्म, कि उसी में से फटाफट पढ़ लिया और कर लिया।
तो अब लाइक आई गॉट टू नो कि भी आई एम लाइक आई वाज गिविंग द एनाटॉमी वाइवा एक्चुअली, दैट वाज माय लास्ट ट्राई फॉर द दिस चीटिंग। उसमें क्या हुआ कि हार्ट, मुझे पता था कि मेरे से हार्ट पूछने वाले हैं। अब मैं जैसे ही वो टॉपिक आपको पता चलता है, जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाते हो। हाँ मैम, यस। एंड आई वाज लाइक वेरी नर्वस कि अरे मैंने पढ़ा तो था बट मैं सब भूल गई हूँ। तो आई जस्ट आस्क्ड देम कि यार वो फर्रा वर्रा दे दो प्लीज़, मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, मेरा नंबर आने वाला है। जैसे उन्होंने किताब दी, ऐसे वो छोटी सी किताब थी, फर्रा सा था, उसको देख के तो और समझना है। मैंने कहा लिखा क्या है आखिर, समझ ही नहीं आ रहा, मतलब पढ़ा हुआ भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एंड देन आई डिसाइडेड कि ये मेरे बस की बात नहीं है। Ma'am, do you have any biggest regret in your life? रिग्रेट, सी आई डोंट हैव एनी रिग्रेट, एंड अगर कोई रिग्रेट होगा भी ना तो शायद मैं उसे भूल चुकी हूँ। बिकॉज आई बिलीव दैट इन लाइफ वी शुड कीप मूविंग ऑन। जो पास्ट में हो गया उसको वहीं रहने दो, भूल जाओ पास्ट हाँ को। सही। You have to add new things in your present and you have to build up your future. So हो सकता है कोई रिग्रेट हो, बट मेरे अभी एट प्रेजेंट तो कोई रिग्रेट नहीं है। मैम आप किस टाइप के स्टूडेंट थे, कौन सी लिस्ट में आते थे आपके कॉलेज टाइम में, टॉप लिस्ट में या बैक बेंचर? मैं वैसे टॉपर लिस्ट में आती थी। आई यूज टू बी लाइक इन द टॉपर्स ओनली, एंड दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि ना जब हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट की तो इट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन कि दैट द स्टूडेंट हु इज ओनली स्टडिंग शी इज इन All दिस of a एक्स्ट्रा sudden, करिकुलर ऑल्सो। And this moment also happened with me कि when I was like I was very good in dance, बहुत नहीं वैसे हूँ अभी भी थोड़ा बहुत। तो डांस में बहुत अच्छी थी, और ऑडिशन हो रहा था हमारा, डांस था, परफॉर्मेंस होनी थी, ग्रुप डांस परफॉर्मेंस, जो हमें ना एम्स में जाके करनी थी, पल्स में हम जाते थे, एम्स पल्स में, तो वहाँ परफॉर्मेंस होनी थी। एंड इट वाज लाइक ए ऑडिशन की जो बेस्ट होगा हमारे उसमें वही उस परफॉर्मेंस में आ सकता है। तो आई ऑल्सो सेड कि सर मैं भी ट्राई करूँगी, एंड दे वर लाइक ये कहाँ से कर पाएगी, थोड़ा ऐसी हो जाता है ना, ये तो पढ़ने वाली है, ठीक है चलो तुम कह रही हो तो आ जाओ। एंड व्हेन आई गिव द ऑडिशंस एवरीबडी वाज स्टार्टल्ड, दे वर लाइक लुकिंग एट मी। मैंने कहा ओके सर ठीक था, एंड दे वर नॉट एबल टू आंसर, क्या बोले, कह रहे शी इज द लीड गर्ल। एंड दैट डे ओनली दे डिसाइडेड कि ये तो लीड गर्ल होगी, अब बाकी को ढूंढो। तो दैट वाज अ वेरी अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी, कि बहुत ही डिफरेंट सा मोमेंट था मेरे लिए। मैम फॉर एग्जांपल हम आपके सामने बोले विनीश सर, तो आपके माइंड में विनीश सर के क्या माइंड में आएगा फॉर विनीश सर? जैसे तुमने सर का नाम लिया, जो फर्स्ट थिंग विच केम इन माई माइंड इज हम्बलनेस एंड द पर्सन विद अ गोल्ड हार्ट। सर के सामने कुछ भी नहीं, सर इज लाइक अ पर्सन विद गोल्डन हार्ट। हम आपके सामने विनीश सर का नाम लें तो आपके माइंड में क्या आएगा? द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माई माइंड इज दैट हिज हम्बलनेस एंड अ पर्सन विद गोल्डन हार्ट। अमित सर? Oh, energy, the energetic person, and always there to help the students. सलमान सर? He is also foodie. हाँ And लास्ट टाइम उन्होंने बोला था he किसी likes a lot of traveling and quite humble, very humble person. ने। धवन सर? Dhawan sir, dynamic and versatile personality. He is a totally different personality. He is a person who gives motivation, like motivation not for the students, for all people. मैम आपका फेवरेट कोई सॉन्ग जो आप सुनाना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? वैसे आप बहुत क्लास में सुनाते हो। नहीं, मैं सॉन्ग तो नहीं सुनाती हूँ, मैं शायरी ज़रूर सुना देती हूँ। हाँ सारी सुना दो। तो अब यहाँ पे वो वाली शायरी तो मैं सुना नहीं सकती जो मैं क्लास में सुनाती हूँ। हाँ, एक फेवरेट शायरी तो ज़रूर है जो मैं हर बैच में सुनाती हूँ। हमसे बच के जाओगे कैसे, अपने दिल से निकालोगे कैसे। अब दिल नहीं, यहाँ पे वर्बुक है, अपनी वर्बुक से निकालोगे कैसे। तो हम तो वो खुशबू है जो सांसों में बसती है, हम तो वो खुशबू है जो सांसों में बसती है, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। So thanks to you all also for inviting me here, and I will recommend all of you to subscribe his channel, Dr. Artist Podcast. Yeah, Dr. Artist Podcast, and you will of course get to know a lot of experiences and a lot of learnings will be there. So thanks to both of you for being here and for making this session so interesting. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, ma'am, as we have finished, as we have completed the session, please sing a song.
सिंगर सॉन्ग सिंगिंग में तो शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, आवाज़ अच्छी है बट सिंगिंग कभी ट्राई नहीं किया सुर थोड़े से गड़बड़ है, बट यस डेफिनेटली इफ यू वांट वी कैन ऑल डांस टुगेदर, हाँ मैम, ये हमारे लिए वन फेवरेट स्टेप Yes, definitely. आई विल टीच यू दैट डांस स्टेप एंड देन वी कैन डू इट. ये हमारे लिए मैम सबसे बेस्ट मूवमेंट बन जाएगा. तो मैम कौन सा सॉन्ग ये वाला सॉन्ग है काली एक्टिवा सब. स्टार्ट.